Good morning, student. Welcome to chemistry class. As you know that we are revising chapters and we have completed solution with the theory and numerical. And as you know that your next examination of revision test is from the solution. You have to focus on the numerical mostly and Raoult's law. In this chapter, electrochemistry, we will see first of all what we have to study once again, then we will see the numerical. As you know that electrochemistry is based on redox reaction. In electrochemistry, we study about the changes due to redox reaction or production of electricity due to the redox reaction. So we have to study about the cell. What is cell? Cell is a device which can convert chemical energy into electrical energy or into electrical energy into chemical energy. Once again, cell is a device which can convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. It means cells are of two types. According to definition of cell, it is a device which can convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. It means there are two types of cells. One is electrochemical cell and other is electrolytic cell. In electrochemical cell, chemical energy converted into electrical energy. It means from the electrochemical cell, we get electrical energy or electricity due to redox reaction. And second one is electrolytic cell. In this type of cell, electrical energy is converted into chemical form. It means we generate chemical with the help of electricity through the redox reaction. Now question is that what is difference between the electrochemical cell and electrolytic cell? First difference is that the conversion of energy. In electrochemical cell, electrical energy is generated from the redox reaction through the chemical. Means in electrochemical cell, chemical energy is converted into electrical energy. Okay. And in electrolytic cell, just opposite, electrical energy converted into chemical energy. Okay. This is the opposite work of the two cells. And another difference is that the redox reaction in electrochemical cell take in the two separate cell. मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन है यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग सेल में होता है और दोनों सेल एक दूसरे से साल्ट ब्रिज से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल सेल, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही सेल के अंदर होती हैं, वहाँ कोई साल्ट ब्रिज नहीं होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड जो होता है निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम अपनी जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं इन्वर्टर बैटरी के साथ, कार में, बाइक में, ठीक है। तो हम जो घरों में बैटरी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाने के लिए, तो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं। जबकि जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, वो सारी सेल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग एक बार पूरा जो है कि समराइज करके स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करनी है, क्या उसके अंदर मतलब है, उन सब चीज़ों को हमें एक बार समराइज कर लेते हैं। चूँकि पढ़ तो चुके हैं, नोट्स भी बना चुके हैं, तो उसको एक बार अच्छे से समराइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, तो हम लोग जो है कि यहाँ पे अब इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है रेजिस्टेंस आता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो मेटालिक रेजिस्टेंस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, जिसको हम G से शो करते हैं, इसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमें ओम्स लॉ जानना पड़ेगा। ओम्स लॉ, ओके। इस लॉ के हिसाब से क्या है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और या V इक्वल टू IR, where R is resistance, okay, and it is proportionality constant, its unit is ओम। ओके, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। ओके, वोल्टेज बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम रेजिस्टेंस के बाद हम कंडक्टेंस के ऊपर आएंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में और जान लेना चाहिए, ठीक है। अब ये फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग resistance of metallic conductor, metallic
कंडक्टर। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक करेक्टर कंडक्टर। तो यहाँ से R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हमें पता लगता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको। वेयर रो इज द resistivity of metallic conductor. Okay, where resistivity is the where rho is resistivity of the conductor. ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है? फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ resistance increases. Resistance increases. Second one is the area of metallic wire. On increasing area, resistance decreases. Okay, and third one is resistivity. Resistivity is specific. Is specific for a particular metal. ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए जो कि अफेक्ट करते हैं किसको? रेजिस्टेंस को। तो हमने ये जान लिया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, रेजिस्टिविटी भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम कैसे जानेंगे रेजिस्टिविटी को? चलिए आइए रेजिस्टिविटी भी जान लेते हैं। फैक्टर जान लिया हमने कि अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस एक तरह से एक कंपैरिजन करें तो जो सड़क पे बने होते हैं स्पीड ब्रेकर, तो अगर जिस रोड में जितना स्पीड ब्रेकर रहेंगे उतना ज़्यादा जो है कि स्पीड कम होगी, उतना कम फ्लो होगा, उतनी भीड़ ज़्यादा होगी, लोग जो है कि उतनी स्पीड में नहीं निकल पाएंगे अगर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है तो। उसी तरह से अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट का फ्लो बहुत ईजी नहीं होगा। अब अगर लेंथ हम बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फ्लो कम होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, वायर जल सकता है। एरिया अगर बढ़ाएंगे, तार को मोटा करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और फ्लो जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
हर एक मेटल की रेजिस्टिविटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, और जिस भी मेटल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है वो उतना ज़्यादा ही अच्छा कंडक्टर होता है। जैसे हमारा सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब अच्छे कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर के रूप में अगर देखा जाए तो जो हमारा सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, ये है। अब हम लोग जो है रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे बच्चों। तो अब हम जानेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी ये एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जिसकी वजह से किसी भी मेटल के अंदर करंट का फ्लो जो है कि वो डिफाइन होता है, किस तरह से करंट का फ्लो होगा। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग पहले रिलेशन जानेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में, फिर उसके बाद हम उसके डिफिनीशन को स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से हम रो इक्वल टू लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल। अब यहाँ पे इफ एल इक्वल टू 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू आर। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज the resistance of conductor is equal to the resistance is equal to the resistance when the length of wire is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, जबकि हम लेंथ उस कंडक्टर का 1 मीटर लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यूनिट अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होगी यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो आर, यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ एल। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो यूनिट ऑफ आर हो गया यहाँ पे ओम, और यूनिट ऑफ एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ लेंथ हो गया मीटर, देन यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी ओम मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का वो भी जान लिया, यूनिट भी जान लिया। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया ऑल अबाउट द व्हाट, ऑल अबाउट द मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस। ओके,
Now we will see the conductance, which is the resistance of the electrolytic conductor. Now we will see the conductance, which is the resistance of the what? Resistance of the electrolytic conductor. ओके, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं. Conductance, resistance of electrolytic conductor. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज रेसिप्रोकल. इट इज reciprocal. What? It is reciprocal. Of it is the reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance. Okay. तो यहाँ से लिख सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. ओके, कैपिटल G. नाउ यू कैन सी हियर G इज इक्वल टू 1/R. ओके, दिस इज द conductance. Or on putting the value of R, you can see 1/rho into A/L. Okay, or you can write 1/L/A. It means 1/ρL ऊपर जाके ये भी एक रिलेशन हो सकता है. ठीक है, तो ये हमने जान लिया कंडक्टेंस का रिलेशन. ठीक है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था. अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंडक्टिविटी. जो सारी प्रॉपर्टीज हम मेटालिक कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे किसके लिए हैं, वो सारी चीज़ें जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए भी है. ठीक है, चलिए हम उसको देख लेते हैं. इसको इरेज करते हैं यहाँ पे. तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है कंडक्टिविटी. It is reciprocal of resistivity. It is reciprocal of resistivity. Okay, सिंपल है, रिलेशन सेम है, एंड इट इज डिनोटेड बाय K kappa. Okay, let's see. K is equal to 1/rho, and we know that rho is equal to R/A. Sorry, RA/L. ओके, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे वैल्यू तो क्या होगा? 1/RA/L.
ओके, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो समझ सकते हैं। अब इसके बाद या तो हम इसको लिख सकते हैं और के स्मॉल के इक्वल टू एल अपॉन आर ए। ओके, और वी नो दैट 1 upon r is equal to z, then you can write here k is equal to z L by a, and we know that L by a is equal to cell constant. ओके, ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है यहाँ से, और सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू सेल कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। हम सिंपल से इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि पहले हमें रेजिस्टेंस जानना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के लिए हमने ओम्स लॉ देखा, और रेजिस्टेंस इक्वल टू यानी कि V बाई आई था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस देखा, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी G इक्वल टू 1 अपॉन आर होता है। कंडक्टिविटी देखा, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, तो अगर हम उस वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो कंडक्टिविटी यहाँ पे हमें मिल गई। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी आर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे रखने पे हमें 1 अपॉन क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। तो हम लोग ये चीज़ें जानते हैं कि 1 अपॉन जी एल आर इक्वल टू जी, तो इसकी जगह पर हमने जी रखते हैं एल बाई ए। इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, कैपिटल जी स्टार से दिखाते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये ऑल अबाउट हो गया हमारा कंडक्टिविटी के बारे में। अब अगर हमें कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे कि हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था। अभी तो हमने यहाँ रेसिप्रोकल बता दिया। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला है, उस फाइनल फार्मूले से हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कर देंगे। यहाँ से हमारा k इक्वल टू जी एल अपॉन ए, वेयर एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, k इक्वल टू जी। तो यहाँ से हम डिफाइन क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सेल व्हेन कंडक्टिविटी is the conductance of cell okay, conductivity is the conductance of cell. Conductivity is the conductance of cell when length of electrolyte is 1 centimeter and
एरिया बिटवीन टू इलेक्ट्रोड is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ की क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ की। तो हम कंडक्टेंस की यूनिट क्या लेते हैं, मो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो सीएम इन सेंटीमीटर स्क्वायर होती है यूनिट, ओके, सेंटीमीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे एस पर सेंटीमीटर, सीएम इन पर सेंटीमीटर, ओके। तो आज हम लोग ने कंडक्टिविटी के बारे में तक जान लिया। कल हम लोग इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब को जानेंगे और इस पे जो न्यूमेरिकल होगा उसको जो लिखेंगे, लगाया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।